So the meeting is recorded so that those who couldn't join today can also take benefit of it. So till now we have discussed two chapters, and let me give a brief summary so that the concepts can consolidate and concepts can join and we can all engage in the discussion, right? So the book is Materialism and Dialectics in Post-Classical World, Impact of Electromagnetism. Anil Rajamwala sir has particularly discussed impact of electromagnetism on these concepts, that is materialism and dialectics, right? And in the first chapter we discussed about the atom and atomism, that how the concept of atom and atomism uh, has become outdated because of the discovery of electromagnetism and discovery of particles and waves outside the atom. Uh, that is like somewhere I studied that gamma stars are there. Stars, those are consists of only gamma rays. So there are no atoms. There are just gamma rays. So uh, uh, this is how the reality, the view towards the reality is to be changed. That it should earlier it was influenced by the earlier it was Panitio. Earlier it was influenced by the Newtonian worldview, and Newtonian worldview was dominant over the scientific community and the philosophy. And the Newtonian worldview was related with the concrete and the bodily forms of the items, bodily forms of the heavenly bodies, and the investigation was into the bodily forms rather than outside the bodily forms. So uh, the the view towards these bodies was that as if that we are penetrating into the bodies. This was same the same view was in the philosophy, and the same view was in the science as well. But with the discovery of electromagnetism, quantum, and fields outside the bodies, and particularly this evolution of species theory of Darwin, uh, later on it was observed, later on it was perceived, and it was philosophized and proposed that uh, the we are moving, our view is upside down. It should be, it should be stand right. The reality consists of abstractions first, and the concrete comes in between. It is not that the field that is coming out of the body, it is the field that is carrying the body. We have to see in this like manner. It is not like that the space is the bearer of the field, rather it is vice versa. That is, the field is the bearer, the field is the bearer of space, right? It means that there is no space, it is only the field. So this is how, these are the few things that we discussed in the chapter 1. And in the in chapter 2, more or less things were similar, but I think that the contribution of Maxwell and Faraday was discussed, that the how Maxwell and Faraday contributed into the formation of field theory. And there was dualism, right? The one was the Newtonian bodies, that are concrete bodies, the other was the field. And how by the discovery of quantum, the linkage between the two was found. So this is how these things were discussed, and uh, their philosophical implications are to be discussed. We discussed it earlier, but we have to discuss it. We should discuss it today also. That how it impacted the whole reality, how it, the concept of reality, how it impacted the concept of philosophy, the philosophical worldview. How how do we how do how to conceptualize these fast motions, right? So as per the author, it is very difficult, it is increasingly becoming difficult to conceptualize these fast speeds. Anyways, let's begin today's discussion now. I, I request all of you to speak something, whatever you have read, or what do you think about these things, particularly related to the third chapter. The third chapter is, this is classical to post classical reality, a critique of mechanistic and idealistic views by Einstein. So here the it is related to the
post-classical reality, and it is a critique by Einstein view, right, of mechanistic and idealistic views. Over to all of you. Yes. Any questions and any observations, any particular paragraph that you liked, any particular line or any particular question that is to be raised, that will be helpful for us. हेलो. लग रहा अमन ठीक कर रही है. हाईली जो है वो फिलोसॉफिकल एज वेल एज साइंटिफिक है, डेवलपमेंट है, खासतौर पर पोस्ट क्लासिकल रियलिटीज़ को जो डिस्कस किया गया है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो समझ से परे है. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और इसलिए जो है वैसे तो इसमें जो कि थॉट प्रोसेस क्या होता है इससे चैप्टर शुरू किया गया है, और थॉट प्रोसेस पे आइंस्टीन क्या कहते हैं उसको बताया गया है. और फिर ये कोई फेमस कोई बुक है, हिस्ट्री ऑफ मैकेनिक्स बाय अर्नेस्ट मैक की किताब है, और उसको उन्होंने डिस्कस किया है. ये जो मैकिनियन जो अप्रोच है उसमें बताया गया है कि ये रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस तक वो कर देते हैं, और टोटली जो मटेरियल रियलिटी है उसको नेगेट कर देता है. यही बात लेनिन भी कहता है, और लेनिन कमेंट करता है कि summarize makes idealism and says it leads to slopism, and एक तरह से एक्सपीरियंस या जो रेशनलिज्म है उसके माध्यम से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये बात जो है वो अपनी फिलोसफी में कह रहा है, और इसको जो है वो एक तरह से इस पर कमेंट किया है, और वो उससे कुछ बातें ली है, उसको क्रिटिसाइज भी किया है. और अल्टीमेटली जो है वो मुझे जो सबसे जो बहुत इफेक्टिव लगा इस सारे में वो लास्ट वाला पैराग्राफ है, थर्ड लास्ट. That is very pertinent to read and digest and understand. The whole crux of that chapter is there in this paragraph, and that is goes like this. I'm quoting from the book. Thus, the philosophy of contemporary science as it issued from the revolutions of the beginning of the century appears as a dialectics of enlightened rationalism and elaborated realism. मुझे लगता है कि इसमें ये कहा गया है कि रैशनलिज्म जो है वो रियलिज्म के साथ में सिंथेसाइज होना चाहिए. Seen from the nuclear level, one might well say that matter evokes a neo-materialism in which substance and energy are interchangeable identities. For example, particle and wave function. He quotes regarding Bachelard, I think he is quoting from it. He quotes Eddington as saying matter is not a cause, it is an index. This line I could not comprehend. You have to light us on this line. Matter is not a cause, it is an index. Bachelard adds further, all exist altogether the structure of space and time. ये लाइन मुझे ठीक लगती है. बचेलार्ड की बहुत सारा उन्होंने उसकी क्रिटिसिज्म भी किया है, लेकिन उससे कुछ लिया भी है. This is very important statement showing the higher spiral growth of materialism. That means matter. This is another very important line for our discussion. That means matter exists as space and time. A great contribution of the electromagnetism.
The unifying formula of general relativity are philosophical synthesis which reunite rationalism and realism. So इस चैप्टर में जो है वो आइडियलिज्म को और जो है वो क्या बोलते हैं उसको मैकेनिस्टिक व्यू को क्रिटिसाइज करते हुए और जो पोस्ट कॉलोनियल पोस्ट क्लासिकल रियलिटी को डिस्क्राइब करते हुए जो क्वांटम फिलोसफी है उसको करते हुए इसको आइडियलिस्टिक फिलोसफी में से जो रैशनलिज्म है उसको भी यूनाइट किया गया है। और इस तरह से ये बताया गया है कि द यूनिफाइंग फार्मूला ऑफ द जनरल रिलेटिविटी आर फिलोसॉफिकल सिंथेसिस says which reunite rationalism and realism. Using his comparison of general relativity, we can say that dualism of mind and body is placed in the context of electromagnetism. Synthesis and continuous spiral of rationalism, realism and materialism through dialectics reveals new realities. ये भी हमें एक तरह से ये बताया गया है कि हम इसको इस तरह से नई जो रियलिटीज है उनको इस डायलेक्टिकल वे से हम समझ सकते हैं अगर हम इनको सिंथेसाइज करते हैं रियलिज्म को, रैशनलिज्म को और मेटेरियलिज्म को। और बहुत सारी बातें हैं जो साइंस की है। मुझे जहाँ तक मुझे समझ आया कि न्यूटोनियन फिजिक्स से शुरू किया है चैप्टर और फिर उसके बाद बताया है कि हम कैसे कैसे नई नई जब थ्योरीज आई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स में हम स्पेस और टाइम को सेपरेट और बेसिक आइडेंटिटीज की तरह ट्रीट कर रहे थे, फिर वो चेंज हो गई जब वेव थ्योरी या फील्ड थ्योरी आई और एक नया कंसेप्ट उभरा है स्पेस टाइम which is different from space and time. करेक्ट। एक तो उसके नुएंसेस हमें समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक हम जैसे अभी कोशिश कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स को न्यूटोनियन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करने की, विच इज अ ग्रेट मिस्टेक। ऐसे ही हम बहुत लंबे टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट से ही समझने की कोशिश करते गए। इसमें एग्जांपल्स और लाइंस कोटेड हैं कि किस तरीके से हम पुराना माइंडसेट और वो थ्योरीज बेस लेके नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करती रहे, जो कि गलती हो रही थी। और फिर उसके बाद समझ में आया जब मैक्सवेल ने दोनों थ्योरीज को कंबाइन भी किया। जैसे कि हमने न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट में देखा है कि प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो हम लाइट को प्रोपगेट कराने के लिए ईथर इमेजिन करने लग गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो न्यूटोनियन फिजिक्स वाला चल रहा है। फिर उसके बाद फील्ड थ्योरीज आई। फिर मैक्सवेल ने दोनों फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंबाइन करके वेव क्या कहते हैं जो फील्ड बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो डिस्क्राइब किया। ऐसे ही वेव पार्टिकल डुअलिटी ने एक बार बहुत ही ज्यादा साइंस को मोल्ड किया। और फिर उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट है क्वांटम फिजिक्स। और हर एक पॉइंट पे हम जो गलती करते हैं वो होता है कि हम थ्योरीज को पुरानी थ्योरीज पे बेस करके समझने की कोशिश करते हैं, विच इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स में है कि हम क्वांटम फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया या कुछ भी, उन्हें अगर हम पुरानी वोकैबुलरी से समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे ये सोचना कि हम एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं, हम उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि स्पेस टाइम कर्वेचर हम समझ रहे हैं। स्पेस टाइम कर्वेचर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि ग्रेविटी को भी एक तरीके से डिनाई कर रहा है, या फिर जिसे हम समझते थे ग्रेविटी को जैसे कि दो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेंज अट्रैक्टिव फोर्स है, क्यों है पता नहीं, तो वो स्पेस टाइम कर्वेचर एक्सप्लेन कर पा रहा है। बट एग्जैक्टली ये चीजें क्या हैं और बुक को समझने के लिए किस लेवल तक हमें समझनी चाहिए, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये चैप्टर
हमें पैरा बाय पैरा उठाना है या साइंटिफिक थ्योरीज को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो एक रीजन और लॉजिक इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, और मतलब नॉलेज हम गेन करते हैं विद द सेंटर की मॉडल्स, थ्योरीज, रैशनल फ्रेमवर्क, एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर बेस्ड होता है। और रियलिज्म reflects a more nuanced understanding of how science relates to reality. अरे ठीक है, तो इसके बीच में हम मतलब टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, एंड दिस इज मोर वैलिड क्योंकि अभी के टाइम में जो हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं उनका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का तरीका ही नहीं है, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि प्रूव करते हैं कि हाँ मतलब जो पुरानी थ्योरीज जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स है वो अर्थ पे जो चीजें हो रही हैं उनका आंसर दे पा रही है, लेकिन ग्रेविटी क्यों है, क्या है, उसका एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पा रही थी। तो नाउ वी हैव कम अप विद न्यू थ्योरीज जो उसका आंसर दे पा रही है। मतलब पुरानी क्वेश्चंस जो अनआंसर। Let me try. मोटे मोटे जो है ये Yes, sir. Absolutely. Yes, yes. हाँ, continue. क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि जो इस बुक का पहला चैप्टर है एटम एंड एटॉमिज्म, उसकी फर्स्ट लाइन है इट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which actually discovered atoms and particles hypothesized by the entire previous human history। यहाँ जो hypothesized का मीनिंग है एग्जैक्टली कितना है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। hypothesized का जो मीनिंग है वो इस चैप्टर पर एक नए संदर्भ में क्या लागू किया जा सकता है, और वो है जो पोस्ट क्लासिकल वर्ड है, क्या उसको हाइपोथेसाइज करने का प्रयास किया गया है। पूरी जो साइंटिफिक थियरीज को हाइपोथेसाइज करने का प्रयास किया गया है क्या। दूसरा क्वेश्चन है रैशनलिज्म और रियलिज्म, ये दोनों क्या है। क्या रियलिज्म को समझने के लिए रैशनलिज्म जरूरी नहीं है, और अगर रैशनलिज्म से रियलिज्म नहीं समझ में आ रहा, रियलिटी नहीं समझ में आ रही, तो फिर रियलिटी को समझने का तरीका क्या रहेगा। All right. I think that discussion has. Okay. Yes, these questions, these two questions has intensified the discussion, right? Particularly the first one. Let's read that line again. Maybe. Okay, Aman, can't you speak? Which line? आप करो। You just raised your hand. Is it so? No. Okay. It was okay. First line को दोबारा पढ़ लेते हैं, first chapter की atom and atomism को. It was industrial revolution which actually discovered atoms and particles. The word in this line actually is italicized. It means that before this actual discovery, it was merely a hypothesis, right? Because thousands of years back, there were hundreds and centuries back, there were philosophers that gave the concept of atoms, like Democritus and Epicurus, and in Indian philosophy, Rishi Kanad. So this actually term means that we in the after the industrial revolution we got instruments to verify that actually atoms, the concept of atomism is actually existing. This is one thing. So it was industrial revolution which actually discovered atoms and particles, comma, hypothesized is also italicized. It means he's putting emphasis here. Hypothesized by the entire previous human history. So this line, this hypothesized means
that the concept of atom has been handed over to the industrial to the scientists of the in the industrial revolution by the previous all the philosophers, all the researchers in the essence form कि एटम एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक्चुअली डिस्कवर किया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। एक बात। दूसरी बात, these were the times in during the industrial revolution when hypothesis or theory could have been given, दी जा सकती थी। तो the first question is that कि hypothesis दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। I think that it is a very complicated question because in the second chapter we have read that at the reality of light speed, it is very difficult to ascertain that actually what reality is. Similarly, matter behaves differently when we observe it, and matter behaves differently in another way when we don't observe it. So how can we hypothesize it? When we try to notice the matter, it behaves in a different manner because as soon as we interfere with it, we see the matter, we try to see it by means of light, by means of electron gun, we change the configuration of matter. So what matter is cannot be known, at least with these whatever we have the instruments today, because the instruments that we have are concrete instruments. We work with concrete instruments, we work with tangible instruments, and even if we हम ऐसे instruments बना लेते हैं that are intangible, but still this is our limitation, that all the instruments, all the human society and our consciousness works on light. We are light dependent. So the light contains particles. It is proved by the Einstein's photoelectric effect experiment. It contains particles, it becomes particle, it becomes wave. When we use it, it becomes particle. The particle strikes with the particle of the reality, and it changes the position and momentum of the reality. This is how it keeps on changing the reality. When the particle strikes back to our mind, it again change. When it hits the computer screen, it again changes. So there are infinite number of changes. So it is very difficult to hypothesize in the way the earlier philosophers and the industrial philosophers, industrial scientists have done. But yet it must be a continuous study of tendencies and continuous study of मतलब रिसर्च करते जाइए, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो that must keep on coming. Every time we experiment, every time we get new results, right? I think that this is my opinion on this. Rest is the second one is the rationalism and realism. Okay, I think ये जो दो शब्द है ना, realism and rationalism, these are coming from the these two things, those two concepts are coming from the discussion of this third chapter. Wait, एक मिनट। साइंटिस्ट थे या तो बाद के और कहीं के साइंटिस्ट थे, वो भी तो हाइपोथेसाइज भी कर रहे थे। वो उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन वे अपनी हाइपोथेसिस के वर्ड कहाँ से बना, किस चीज से वर्ड बना है, तो वो तोड़ते गए और आखिरी में जो है कुछ टूटा नहीं, तो उनको लगा कि ये लास्ट है, और वो जो नहीं टूटता उसको एटम कहा गया। तो वो एटमिज्म जो है, एटम और एटमिज्म वहां से ड्राइव हुआ है, बट हाइपोथेसिस ही था। अभी भी हमें हाइपोथेसाइज तो करना ही पड़ता है, कोई भी रिसर्च करने के लिए अज्यूम करना पड़ता है, हाइपोथेसिस तो देना पड़ता है, उसको फिर प्रूव करते हैं या उसके अगेंस्ट जाते हैं। अब ये दूसरी बात है कि हमारी हाइपोथेसिस अब क्वांटम वर्ल्ड में जाकर के हम जो है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन दोनों की दोनों वो इंटरमिंगल हो गई है। तो वहां पर हाइपोथेसिस कैसी रह गई है, किस तरह की है, इस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन हाइपोथेसिस तो वैलिड मानी गई है रिसर्च के अंदर, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या चाहे वो साइंसेज की रिसर्च हो। ओवर। Yes, Aman, you have raised hand. आई डोंट थिंक कि ये जो चीज़ें हैं कोई भी डाउट रेज करती हैं
कि अब हम रियलिटी कैसे सर्च करेंगे, रैशनल क्या है, ऐसा कोई डाउट तो नहीं रेज करना चाहिए. इट इज जस्ट कि थोड़ा सा बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड बियॉन्ड आवर टाइम बोल सकते हैं कि वी डोंट हैव प्रॉपर वेज टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, या फिर उसको कंसोलिडेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि वही जो पहले दिक्कत आ रही थी कि न्यूटोनियन माइंड, हम नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. और इस चैप्टर में भी दे रखा है कि बिकॉज ऑफ दिस, मतलब एक ये तरीका होने करके, this has led many philosophers, scientists and everybody into ये mysticism and all, ये काफी सारे वर्ड्स दे रखे थे, 4-5 दे रखे. तो हमें उसमें खो जाना नहीं है. these are different things. अभी भी to put it like this, not very rational way, science is very scientific. साइंस इज साइंसिंग, ओके. बस हमें समझ नहीं आ रहा है. गुड. तो यस. जैसे मतलब लाइक मैं अपने नोट्स में से पढ़ देती हूँ, यू जज कि कितना ठीक है. एनलाइटेंड रैशनलिज्म और इलैबोरेटेड रियलिज्म पे. एनलाइटेंड रैशनलिज्म अगर हम समझ रहे हैं, दिस अप्रोच एम्फसाइजेस द पावर ऑफ ह्यूमन रीजन लॉजिक in understanding the world. It is rooted in the Enlightenment tradition, which holds that reason and empirical evidence are central to gaining knowledge. In the context of science, this means relying on mathematical models, theories, and rational framework to explain natural phenomenon. Elaborated realism, ठीक है ना? ठीक है. वीडियो बंद कर दो, तुम्हारा आवाज कट रहा है. Elaborated realism. This reflects a more nuanced understanding of how science relates to reality. मतलब कैसे relate करती है. While realism in science generally posits that our theories aim to describe an objective reality, yani elaborate realism suggests a more complex and refined version of this view. It acknowledges that scientific theories are not just simple reflections of reality, but are constructed and refined through sophisticated processes and may involve abstract concepts that don't have direct one-to-one correspondences with physical reality. बस इतना सा मतलब है कि हमें टू एंड फ्रो करते जाना है, लेकिन हम रियलिटी से दूर हो गए हैं, ऐसा नहीं है. जस्ट हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन ज्यादा करनी पड़ रही है. वन ऑन वन जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डिफिकल्ट हो गई है, बट स्टिल मॉडल्स, मैथमेटिकल थ्योरीज आर देयर. रियलिटी उससे समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं है. इट इज जस्ट ये कंसेप्ट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन रियलिटी से दूर नहीं है. एंड इसी से रियलिटी समझ आएगी. नो कंफ्यूजन अबाउट इट. द टर्म डायलेक्टिक्स इन दिस indicate on ongoing dynamic interaction between these two approaches. In this context, dialectic implies a continuous back and forth between the rational, yani ki theory driven approaches of science, and a more nuanced reality oriented perspective that recognize the limitation and complexities of scientific models. Bas. Okay. I think that we should take that. Let me. Yes, it was the very मतलब बहुत abstract था ये जो तुमने पढ़ा. That was very good discovery. That was very you distilled the chapter. You distilled the chapter. Yes, Aman. एक और डाउट था ना सर, जब पढ़ रहे थे. हाँ, वो डिस्कशन में आ जाएगा. मैटर एज एन इंडेक्स, वो आई थिंक अगर ऐसा है कि पहले हम
मैटर को ऑब्जेक्टिव रियलिटी लेके चल रहे थे कि मैटर के अराउंड फील्ड है पे नहीं है, ऐसा करके। अभी स्पेस टाइम थ्योरी हम पढ़ रहे हैं कि हर जगह वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसे स्पेस टाइम कर्वेचर ये कॉन्सेप्ट समझना और करना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट सबसे नजदीक जो हम इमेजिन कर सकते हैं, मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के लेवल पे हो सकते हैं समझने के लिए, दैट इज लाइक आपने वो ट्रैम्पोलिन या कोई भी ऐसे रबर शीट स्ट्रेच कर ली, उस पे बॉल डाल दी, वो वहां से स्पेस टाइम कर्व मोटा मोटी तरह से वो समझ आता वो हम है साइंस ना। म्यूजियम में भी देखते हैं, मतलब राइट। फिर से वो चीज हमें समझ नहीं रहेगी, ये 3 डायमेंशनल व्यू है, न्यूटोनियन फिजिक्स का व्यू है, वो एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ ऐसे घूम गया, ठीक है। करेक्ट। फिर उसके बाद ये है कि पहले हम ये देख रहे थे, अच्छा वेव्स जो है मैटर के अराउंड जाके कन्वर्ट कर रही है, कुछ कर रही है, चेंज कर रही है अपने आप को, ऐसा था। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडीज या लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओल्ड स्टडीज, वो ये है कि मैटर इज नथिंग बट जो वेव ही कंटिन्यूअस है, उसके अंदर छोटे छोटे जो डिस्टरबेंसेस की प्रोजेक्शन है मैटर बस। तो इसीलिए बोला है कि मैटर एज एन इंडेक्स, मतलब साइन या इंडिकेटर है किसी और चीज का, मैटर नॉट अ कॉज। ये था साइन का मोटा मोटा सा मतलब। राइट राइट, करेक्ट। cause pertains to something that is existing. कोई existing चीज होगी वही cause होगी. If something is not existing, right, it it is continuous. When something is continuous, how it can be a cause? It is an index. It keeps on, it has certain intensity somewhere, it don't have intensity some other place. It exists somewhere, it do not exist other where, right? Okay, we will discuss. अभी आएगा इस पे। जैसे क्वांटम है, क्वांटम may exist, may not exist, right? it may exist at two different positions, and these two positions can be light years away, and there is a instantaneous impact on each other simultaneously. उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक बदलता है दूसरा हाथों हाथ बदलता है उसी मोमेंट पे। एनीवेज, लेट्स कमिंग बैक टू द चैप्टर, आई थिंक, बिकॉज बहुत ही, हेलो, हाँ जी हाँ जी, यस, मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो मैंने रेज किया। ये जो हाइपोथेसाइज्ड ऑफ द होल हिस्ट्री, इसका मीनिंग पीएचडी वाली हाइपोथेसिस से नहीं है। जो हम पीएचडी वाली हाइपोथेसिस का मतलब किसी रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च से पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव होता है। तो ये इसका मीनिंग ये नहीं है मेरी समझ में। नहीं, मैंने भी नहीं समझा ऐसे इसका मैं हाँ, करेक्ट, नहीं, सर ने भी जिस तरीके से रखा था, नहीं, मैंने तो आज के संदर्भ में रखा था कि हम रिसर्च करते हाँ? हैं, तो आज के संदर्भ में रखा था कि रिसर्च करते हैं तो किसी लेके चलते हैं कोई ना कोई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, पीएचडी वाली लेकिन थीसिस। ये जो पुराना जो हाइपोथेसाइज्ड जो है, ये इसके संदर्भ अलग हो सकते हैं। इसको आप अवेलेबल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसका जो मैंने है, जो तीसरे चैप्टर से जो मैंने मेरे दिमाग में जो ये है कि हाइपोथेसाइज्ड ऑफ द होल हिस्ट्री, होल प्रीवियस हिस्ट्री। इसका मतलब है कि एटम, जो एटम की डिस्कवरी थी और फिर एटम की डिस्कवरी के आधार पर
जो साइंटिफिक फिलोसफी डेवलप हुई, उसने पूरी अभी तक के इतिहास, जो प्रीवियस हिस्ट्री का मतलब है, जो पूरी दुनिया का कंसेप्ट, पूरी जो वर्ल्ड है उसका कंसेप्ट को फिलोसोफाइज कर दिया, उसको उसको हाइपोथेसाइज किया। इसका मतलब है कि एक नई फिलोसफी डेवलप हुई, और वो नई नई फिलोसफी डेवलप करके उसने रियलिटी में ये साबित किया कि दुनिया जो है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। और इससे पहले जो एटम का कंसेप्ट थे, वो साइंस एक्चुअल एटम की जो खोज नहीं होने के कारण कर तो रहे थे, लेकिन वो जिनके पास कंफर्म साइंस नहीं थी पहले वालों के पास, मतलब वो कहीं ना कहीं जाके आइडियलिज्म में उनको कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता था, जैसे कणाद ने वगैरह ने भी। तो ये जो है फिलोसोफाइज्ड है, इसका मीनिंग एक साइंटिफिक फिलोसफी जो है उससे निकली। मेटेरियलिज्म जो है वो एक कंक्रीट फिलोसफी के रूप में सामने आया। सर ये भी यही है ना सर, कि पहले ये हाँ, हाइपोथेसाइज्ड था और अब एक्चुअलाइज हो गया। पहले जो है वो हाइपोथेसाइज्ड है, चाहे वो फिलोसोफाइज कह लीजिएगा, लेकिन वो था हाइपोथेसाइज्ड और एक्चुअलाइज हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आके। ओनली द थिंग इज करेक्ट। प्रूव नहीं कर पाए थे वो पहले, हाँ, हाइपोथेसिस ही थी वो उसको एक्चुअलाइज कर लिया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा कि हाँ आप ठीक करे थे। दिस इज द ओनली लाइन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया है। इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज के थ्रू इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूव हुआ है। और सारे ही आए हैं, हाँ, और सारे पॉइंट यहाँ ये है कि एटम को पहले से बताया जा रहा था कि दुनिया एटम से बनी है, ये बताया जा रहा था, लेकिन ये प्रूव कर दिया साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कि यस एटम इज देयर, नाउ इट इज एक्चुअलाइज्ड। ओके अमन। ओके। अब इसका ये जो कंसेप्ट है ये क्राइसिस में आ गया। यही कंसेप्ट क्राइसिस में आया ना फिलोसफी में, तो एटम के ऊपर ही। और ये क्राइसिस में आने के बाद जो पिछले पिछले 100 सालों में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, क्या उनको दोबारा से कोशिश की, उनके आधार पे नए तरीके से फिलोसोफाइज करने की कोशिश हो रही है क्या? सर फिलोसफी ये क्राइसिस में आई क्वेश्चन है। है। फिलोसोफाइज तब किया जाएगा, साइंस क्राइसिस में नहीं आई है, फिलोसफी क्राइसिस में आई है। साइंस आज भी वैसे ही काम कर रही है और बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। फिलोसफी जो कि दुनिया को एक झटके में समझ जा सकती थी, वो फेल कर गई है। साइंस इंस्ट्रूमेंट्स भी बना रही है, साइंस हाइपोथेसाइज भी कर रही है एक लेवल तक, ठीक है, और उसमें रिसर्च पेपर्स भी आ रहे हैं, उसके डिस्कवरीज भी हो रही हैं। पूरी दुनिया की एक मेटरलिस्ट फिलोसफी नहीं है जो जो हर चीज को एक्सप्लेन कर सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे एक ऐसी फिलोसफी थी, जैसे मार्क्स के ज़माने में, जो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती थी, चाहे वो कुछ भी हो। अब नहीं, ये क्राइसिस है। जैसे आइडियलिज्म जो है, जैसे गॉड है, गॉड के थ्रू आप दुनिया का हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ कर सकते हो। एक आदमी रो रहा है तो बता सकते हो गॉड की वजह से रो रहा है, या रॉकेट जा रहा है ऊपर तो गॉड की वजह से जा रहा है। सब कुछ गॉड आंसर कर सकता है उसका, एज पर दैट आइडियलिस्ट थियरी। Similarly, in the Industrial Revolution, the materialism was that much powerful that it could explain every phenomena of this universe by the means of philosophy. But today, materialist philosophy is unable to answer each and every phenomena with the help of philosophy. It cannot philosophize. It cannot generalize everything. Here, the philosophy failed as a subject.
philosophy as a subject has failed. It is not crisis in philosophy, it is philosophy in crisis. I hope it is clear now. Up to certain extent, certainly. इसी करके जो सोशलिस्ट जो सोशोलॉजिस्ट हैं और जो थियोरिटिशियन हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो पीछे की तरफ देख रहे हैं। करेक्ट। यही चीज मानवेंद्र में भी है, जो ये किताब पढ़ रहे थे हम, ज्ञान की राजनीति, उसके अंदर भी यह चीज उस टेंडेंसी है ये। करेक्ट। वो सेम टेंडेंसी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ी, कांतिनिज्म की तरफ जाने की, जिसमें जो दिस कौन से साइंटिस्ट का नाम लिया, बैकलार्ड जो है वो कांत की तरफ जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू डिस्कवरीज in philosophy. So how to philosophize science? So scientists are going towards Kant to philosophize it. However, the system of Kant is not clear. The system of Kant is, the philosophy of Kant is leads to agnosticism and speculation. Anyway, let's come back to this chapter rather than जनरल चीज़ों से इस पे आते हैं एक बारी। हालांकि जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेरे को लगता है इसी चैप्टर से परटेन कर रहा है बिल्कुल, हालांकि रैशनलिज्म और रियलिज्म वाला। वी विल डिस्कस इट इन डिस्कशन, राइट। तो मेरे को जितना समझ में आया है, द चैप्टर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इंक्लूड्स, yes sir, it includes lots of concepts and basically it is a comment on those concepts and their interrelations, and particularly this Einstein and mechanist contradiction. So first of all we must see that what is this mechanist contradiction, what is this mechanist worldview, right? This he has mentioned certain names on page number 49, Avenarius, Bogdanov and other protagonists of his talk. He has talked about a school that is empiriocism, to which Lenin criticized in his book Materialism and Empiriocriticism. So basically these scientists, particularly the leader of those scientists was the Ernst Mach, and he wrote his work History of Mechanics. So these are they are basically materialist. They are basically materialist. They follow Newton. They follow Newtonian science, but they philosophize Newtonian science in a way of idealism. They believe in reality, they believe in that, but they explain reality in idealist way, right? How they are considering the realism, right? Everything is real, but they are limited to the sensory perception. And they are limited to the sensory perception means if a glass is there, they are limited to the outer appearance of the glass, how much the glass is being perceived, it's जितना मैं इसको perceive कर पा रहा हूँ इतना ही एक glass है. They are not going beyond it, right? This is realism. This is naive realism. The term has been used in this chapter, naive realism, that they are not going beyond it. They are limited to the sensory perception. Whatever the senses are experiencing, is the reality. So ultimately, it shifts the क्या बोलते हैं, pendulum from material world to what we are perceiving. Rather than material predominance of materiality, the perception becomes important in conception. So this is how, it being that they are materialist into idealist, because whatever they are is into a
into a अपने आप ये एक्चुअली आइडियलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? सो बट Einstein was Einstein machinist. He Mac particular discovery of during when he these particularly the क्वांटम की जब खोज होती है और होती है तो उसके बाद उनका जो विचार है वो बदलने लगता है और वो ये मानने लगते हैं कि the science and the world is not just we see what we just see and experience. Yes, it is there, but there must be some rational thinking, rationality and logical outcome. Logical thinking must be working behind it that we cannot see. हम डायरेक्टली उसे नहीं देख सकते. आइंस्टीन ने इस चीज को प्रैक्टिस किया, इसको थॉट एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आइंस्टीन ने बहुत सारे, जैसे थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है. हम थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को हम किसी भी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से थियोरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं निकाली जा सकती. थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने निकाली है थॉट एक्सपेरिमेंट से, यानी कि अर्नस्ट मैक के जो व्यू है उससे अगेंस्ट जाके, और उन्होंने रैशनल थिंकिंग करके, लॉजिकल थिंकिंग करके इसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसाइज किया है. सो नाउ दैट क्वेश्चन दैट रियलिज्म एंड रैशनलिज्म, सो दो, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में जो सर ने जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट बताया भी था, उस पैराग्राफ में ये भी क्लियर हो जाता है कि रैशनलिज्म और रियलिज्म के दोनों के एक साथ डायलेक्टिक्स से दुनिया को समझा जा सकता है. So what Einstein did in special relativity of special relativity theory, that he included both rationalism and realism, and you will see in this page number 59 that he has, Anil Rajamwala sir has mentioned, not Anil Rajamwala sir, this Bacalord has mentioned general theory of relativity, and he included in the last paragraph, he has included general theory of relativity. We will come to the general theory of relativity and special theory of relativity, but एक अभी इतना ही कमेंट करूंगा कि rationalism यानी कि thought experiment, that is logic, and thinking is necessary to identify, to ascertain the reality. Here the Einstein criticizes him, और ये एक एस्पेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है. अब दूसरा एक एस्पेक्ट शुरू होता है, वो एस्पेक्ट शुरू होता है कांत का. कांत जो है वो थिंकिंग को वो देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं. कांत जो है वो रियलिटी से कट जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ए प्रायरी का, राइट? व्हाट इज ए प्रायरी? ए प्रायरी मीन्स समथिंग इज एज्यूम्ड बिफोर हैंड, because we are a thinking being, because we have rationality. So maths, algebrism and logic and calculation, all these things are inherent in the mind. Similarly, by this on this notion, he hypothesized that space-time is also a result of priori. Okay, this is Kant. So Kant is emphasizing on the thinking, but here the book, the chapter is criticizing Kant, that a priori is nothing but a speculation, and a priori a priori यानी कि पहले से किसी चीज को मान लेना, एज्यूम कर लेना, वो तब तक तो आप मान सकते थे जब ये दुनिया न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट्स में चल रही थी, बट a priori will fail. Page number 55, last line. He fails to explain a priorism of space-time. He can explain space and time, cannot explain space-time. A priori can explain space and time, cannot explain space-time. Space-time is altogether new thing. So this Kantian a priorism fails when space-time comes. Now what is space-time?
these things. So unless we understand what is relativity and what is space time, which are coming from electromagnetism, quantum and this Newtonian physics, इसमें से निकल के ये सब आ रहा है। अब अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम इसके कमेंट्स, इस पे हो रहे कमेंट्स को भी नहीं समझ सकते। लेकिन अभी तक इतना श्योर है कि कांत को कैसे क्रिटिसाइज किया, तो कांत का ए प्रायरिज्म डू नॉट वर्क in space time because what is happening in space time cannot be a prioritized, right? This is one thing. So the author is emphasizing the role of rationalism, thinking and the realism, and the both of these things gets मतलब सामने आती है क्वांटम मैकेनिज्म के रूप में, क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में या क्वांटम ग्रेविटी के रूप में। वो मतलब वो दोनों चीज़ें, आगे की जो रिसर्च है वो रैशनलिज्म और रियलिज्म पे डिपेंडेंट है, ना ही रियलिज्म पे ना ही रैशनलिज्म पे। ठीक है, ओवर, अप टू दिस एक्सटेंट इट इज ओवर। सेकंड थिंग सर, हाँ आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ए प्रायरिज्म क्या है? हाँ, ए प्रायरिज्म का मतलब है, कांत का ए प्रायरिज्म है कि इंसान के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पहले से हैं, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, अलजेब्रा, या जैसे रैशनल थिंकिंग, वो पहले से है, तो वो बाहर से नहीं ले रहा है, वो पहले से है। तो इसी तरीके से कहने का अर्थ है कि दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर पहले से है। ये कांत का एक हाइपोथेसिस, कांत का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको राजिम वाले AR सर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये स्पेस टाइम वाली दुनिया में, जिस दुनिया की अब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं हो सकती। हम पहले से नहीं जान सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम रियलिटी को अप्रोच उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से कांत के ज़माने में रियलिटी को अप्रोच किया जाता था, यानी कि न्यूटोनियन तरीके से, कंक्रीट वे में रियलिटी अवेलेबल थी, और या फिर ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस था वो इसका पॉजिटिविज्म का इन्फ्लुएंस था, डिटर्मिनिज्म का इन्फ्लुएंस था। डिटर्मिनिज्म का मतलब है, मान लीजिए आपके हाथ में गेंद है, वो गेंद आप फेंकते हैं तो आपको पता है कि ये किस वेलोसिटी से फेंकी गई है, कितनी दूर तक जाएगी और कहाँ जाके रुक जाएगी। दिस इज डिटर्मिनिज्म, यू कैन डिटरमाइन थिंग्स, राइट? लेकिन अब हम जिस दुनिया में हैं वहाँ पे डिटर्मिनिज्म काम नहीं करता। हमें नहीं पता एक इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो जहाँ से अभी उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा आने वाले टाइम में, और वो पैटर्न दोबारा कब रिपीट करेगा, अभी रिपीट करेगा या बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद रिपीट करेगा। वी आर नॉट एबल टू फाइंड those patterns, we are not able to determine its exact position and momentum, so the determinism do not apply, therefore priori do, yes, positivism भी वही है, positivism भी देखना ही पड़ेगा, उसी से रिलेटेड है सर positivism भी, जिसमें हम चीज़ों को प्री डिफाइन कर सकते हैं या फिर एंटीसिपेट कर सकते हैं, लार्जली उसका ये मतलब है। सो एनीवेज, लेट्स कमिंग बैक टू द चैप्टर। सो ये इसके मेन चीज़ है। दूसरी बात अब ये है कि हमें एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, वो ये है कि यूनिवर्स रहस्यों से भरा है। मैंने जितना पढ़ा उसमें मुझे लगा, और हमारी जो समझ है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही हमारा लॉजिक बहुत ही फाइनाइट, और हमारा लॉजिक जो है ना वो बहुत ही 2+2 वाला लॉजिक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बड़ी एस्टोनिशिंग पढ़ने को भी मिली, जानने को मिली, वो मैं शेयर करूँगा। जैसे एक तो लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। लाइट की स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि किसी भी परिस्थिति में लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। चाहे, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप खड़े हैं और आपके साइड से एक ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है,
अब ट्रेन के आगे जो लगी हुई लाइट है उसकी स्पीड होनी चाहिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्लस 50 किलोमीटर। लाइट स्पीड कांस्टेंट, श्रोडिंगर कैट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट, करेक्ट। ट्रेन की जो आगे लाइट लगी है उसकी जो स्पीड है वो उसमें ट्रेन की स्पीड ऐड हो जानी चाहिए, ठीक बात है, क्योंकि 50 किलोमीटर की स्पीड पे तो ट्रेन चल ही रही है, प्लस में लाइट की स्पीड हो गई। लेकिन जो बंदा बाहर से खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसको लाइट की स्पीड उतनी ही दिखेगी जितनी वो है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का अर्थ हुआ किसी भी परिस्थिति के अंदर, चाहे आप लाइट की तरफ जा रहे हैं या आप लाइट के से दूर भाग रहे हैं या आप खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप रेस्ट पे हैं, किसी भी परिस्थिति में लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होती। ये एक मिस्ट्री है, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी 50 पे चल रही है, पीछे वाले की गाड़ी 40 पे चल रही है, तो आपके कंटेक्स्ट में पीछे वाले की गाड़ी 0 पे है और आप 10 की स्पीड पे चल रहे हैं पीछे वाले के मुकाबले, करेक्ट। दोनों गाड़ियां अगर साथ चल रही हैं 50 पे, तो आप भी 0 पे हैं, वो भी 0 पे है। अगर आप 50 पे चल रहे हैं तो आप 50 किसके संदर्भ में चल रहे हैं? 0 के संदर्भ में 50 पे चल रहे हैं। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है, ये रिलेशन लाइट पे लागू नहीं होता है। लाइट आप किसी भी परिस्थिति में, आप चाहे 100 की स्पीड पे चलें या 1000 की स्पीड पे चलें, आप हमेशा क्या बोलते हैं, आप हमेशा लाइट को उसी स्पीड में पाएंगे, कभी भी लाइट के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। जी सर बोलिए। लाइट कांस्टेंट है। लाइट कांस्टेंट है। लाइट की कांस्टेंट प्रूव होने के बाद एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हुआ। वाई का आंसर अभी तक नहीं आया, क्यों है ऐसा, लेकिन ये पता है कि कुछ भी हो जाए यूनिवर्स जो है वो लाइट को कांस्टेंट रखेगा। इसके आधार पे रिलेटिविटी थ्योरी देते हैं आइंस्टीन, इसके बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है। वो है क्या, वो क्या है कि भाई हम दुनिया को देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर। न्यूटन की दुनिया में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दुनिया को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, एक पेड़ हमारी नज़र में कि हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ऑन रेस्ट, बट it is actually not in rest. The earth is moving and the universe is moving, so the tree is not at rest. In a particular frame of reference it is at rest, but however Einstein says that there is no universal frame of reference. इस दुनिया में कोई यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, हर चीज मोशन में, हर चीज मोशन में, राइट। तो पेड़ भले ही दिख रहा है कि वो खड़ा है, लेकिन वो खड़ा नहीं है, वो मोशन में है। इसी तरीके से कोई ऑब्जर्वर है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी मोशन में है। सो देर आर नो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, देर आर नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, बट देर आर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड देर इज नो प्रेफरेंस अमंग देम। उनके बीच में कोई प्रेफरेंस नहीं हो सकती। फिजिक्स जो है वो तो रियलिटी जो है वो कोई मेरे हिसाब से थोड़ी ना लागू होगी, भाई मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही है, मैं क्योंकि मैं इंसान हूँ इसलिए मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलेगा, नहीं। लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाइज ऑन ऑल द यूनिवर्स एज इट इज एट द सेम मोमेंट, सेम टाइम, उसी समय, उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे लॉज ऑफ फिजिक्स लागू हो रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं कर रहा है। मुझे हो सकता है, लग रहा है कि ये चीज़ रेस्ट पे है क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली तो वो चीज़ रेस्ट पे नहीं है। एक्चुअली तो वो घटनाएं यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से घटित हो रही हैं, ठीक है। एक देखो, मैं एक लाइन पे ना एम्फेसिस देता हूँ जो सर ने भी पढ़ी थी, बड़े इंटरेस्टिंग थी। पेज नंबर जस्ट अ मिनट, यस, पेज नंबर 53। आइंस्टीन कंक्लूड करते हैं, फिजिक्स इज एन अटेम्प्ट कंसेप्चुअली टू ग्रास्प रियलिटी एज इट इज। फिजिक्स जो है वो एक अटेम्प्ट है रियलिटी को ग्रास्प करने का, कि उसे एज इट इज ग्रास्प कर लिया जाए। थॉट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड, दिस इज प्रोफाउंड स्टेटमेंट, प्रोफाउंड है ये लाइन। थॉट जो है इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड, मतलब थॉट ने बीइंग को ऑब्जर्व किया, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ रियलिटी उसने उसको ऑब्जर्व किया। कहने का मतलब है कि थॉट ने उसको ऑब्जर्व भी किया
थॉट ने उसको ऑब्जर्व भी किया लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स बीइंग किया, मतलब उसका अपना ये नहीं कह सकते, कोई इंटरफेरेंस नहीं है रियलिटी में। इज द थॉट मस्ट सी परसीव द रियलिटी independent of thought. This is dialectical. Thought must perceive the reality independent of thought. So the thought has perceived it despite its perception. Thought must not exist but the reality. So this is how, मतलब इतना philosophical है आइंस्टाइन। तो coming back to that relativity thing, okay, तो अब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो अलग अलग होते हुए भी वो हमारे लिए अलग अलग हैं। हम ऐसे देख सकते हैं कि एक आदमी जमीन पे खड़ा है, ट्रेन साइड से गुजर रही है, बाहर जो बंदा खड़ा है उसके लिए ट्रेन चल रही है, ठीक है। अंदर जो लोग बैठे हैं ट्रेन के वो रेस्ट पे हैं, लेकिन बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेस्ट पे नहीं है, वो चल रहे हैं 50 या 100 की स्पीड से। तो दोनों का जो दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है, लेकिन दुनिया को दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ना तो बाहर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और ना अंदर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। वी मस्ट रिसीव द रियलिटी एज इट इज। अगर हम रियलिटी को एज इट इज देखते हैं तो फिजिक्स के लॉज बाहर वाले पे जैसे वो परसीव कर रहा है रियलिटी को वैसे अप्लाई हो रहे हैं, और फिजिक्स के लॉज उसमें जो लोग अंदर बैठे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे अप्लाई हो रहे हैं। यानी कि फिजिक्स के लॉज एट द सेम मोमेंट, फिजिक्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, laws of physics do not discriminate between the various frame of references. It has no preferred frame of reference. Second, अब मान लीजिए उस ट्रेन को हम दौड़ा देते हैं लाइट की स्पीड पे या नियर लाइट स्पीड पे। लाइट की स्पीड पे अगर हम उस ट्रेन को दौड़ा देते हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, उस स्थिति के अंदर यह होगा कि वो ट्रेन ऑब्जर्वर से बहुत दूर चली जाएगी, राइट। एक हाइपोथेसिस है, थॉट एक्सपेरिमेंट है जो आइंस्टाइन कर रहे हैं रिलेटिविटी एक्सप्लेन करते हुए, कि वो उस तेज गति से लाइट की स्पीड से मान लीजिए हमने उसको चला दिया। अब उस स्थिति के अंदर क्योंकि वो लाइट स्पीड पे है, ऑब्जर्वर को भी लाइट स्पीड वही चाहिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और वो जो उस ट्रेन में जो बैठे हैं उनके लिए भी लाइट स्पीड वही होनी चाहिए। लाइट स्पीड चेंज नहीं हो सकती, लाइट की जो स्पीड है वो दोनों के लिए सेम रखनी है। इसलिए आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दे दिया टाइम डायलेशन का, कि जो लोग ट्रेन में बैठे हैं उनकी, क्योंकि वो इतनी तेज गति से चल रहे हैं, और क्योंकि यूनिवर्स को लाइट स्पीड को दोनों के लिए कांस्टेंट रखना है, ऑब्जर्वर के लिए भी, क्योंकि हमने पहले क्या बात की भी, लाइट स्पीड जो है ना वो किसी भी स्थिति के अंदर, चाहे आप उसकी तरफ जा रहे हैं, चाहे आप उससे दूर भाग रहे हैं, चाहे आप खड़े हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप ना तो खड़े हैं, ना आप किसी की तरफ जा रहे हैं, और ना ही आप पीछे भाग रहे हैं, आप अल्टीमेटली रिलेशन के अंदर चल फिर रहे हैं। लेकिन लाइट के ऊपर ये रिलेशन लागू नहीं होता, और ये जो ट्रेन वाला एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, इसके माध्यम से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों अब लागू नहीं होता। तो यूनिवर्स क्या करता है कि वो लाइट की स्पीड दोनों के लिए कांस्टेंट रहे, इसलिए टाइम डायलेशन आ जाती है, और जो लोग उस ट्रेन में बैठे हैं उनकी एजिंग, उनका टाइम स्लो हो जाता है। उनकी, मान लीजिए अगर उनके पास घड़ी है तो उनकी घड़ियां धीमी चलने लगती हैं, उनका टाइम स्लो हो जाता है। इसीलिए टाइम डायलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लाइट की स्पीड पे किसी चीज को दौड़ा दिया जाए तो टाइम डायलेशन इतना स्लो हो जाएगा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम रुक जाएगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो बंदा बाहर खड़ा है उसके कंपेयर करके, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो टाइम बढ़ता रहेगा, जो बाहर खड़ा है उसका तो टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन जो वहां ट्रेन में बैठा है उसका टाइम घटता रहेगा, उसका टाइम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से घटेगा, हालांकि उसका टाइम नॉर्मल चलेगा। इसलिए आइंस्टाइन कहते हैं कि एब्सोल्यूट टाइम जैसा कुछ नहीं होता है, एब्सोल्यूट टाइम इस दुनिया में नहीं है। न्यूटन का जो हम जो ये सोचते हैं भाई यहाँ भी उतना ही टाइम है, वहां भी उतना ही टाइम है, ऐसा नहीं है। दुनिया के में एब्सोल्यूट टाइम कुछ नहीं है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम पे भी लागू होती है। इसीलिए आइंस्टाइन जो है वो दुनिया को 3 डायमेंशन में नहीं 4 डायमेंशन में देखते हैं। चौथी डायमेंशन टाइम है, और यहीं से निकल के आता है स्पेस टाइम। पहले स्पेस और टाइम अलग अलग है, लेकिन
स्पेस के अंदर अगर लाइट की स्पीड से किसी को दौड़ा दिया जाए तो टाइम एक डायमेंशन की तरह काम करता है, यानी कि आपका टाइम अलग चलेगा, मेरा टाइम अलग चलेगा. टाइम बिकम्स अ डायनामिक डायमेंशन when things happen at light speed. However, even if लाइट स्पीड में नहीं भी हो रही तो भी टाइम एक डायमेंशन है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम होता है, ठीक है. और हाँ अमन, 1 मिनट बस खत्म कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट. तो द पॉइंट इज दैट टाइम इज इसीलिए सर ने कहीं पे ये लिखा भी था, टाइम इज बिकमिंग अ क्रूशियल फैक्टर. ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज and we must accept these mysteries, and this is how theory of relativity आती है, और theory of relativity से वो explain कर रहे हैं रिलेशन को. अलग अलग ऑब्जर्वेशन का महत्व को समझो आप. ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रियलिटी, जो बंदा बाहर खड़ा है उसकी रियलिटी कुछ और है, जो बंदा ट्रेन में बैठा है उसकी रियलिटी कुछ और है, जो बंदा बाहर खड़ा है उसके लिए दूसरी की रियलिटी कुछ और है, जो बंदा ट्रेन में खड़ा है उसके लिए बाहर के वाले की रियलिटी कुछ और है. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे और सिंपल उसमें लेते हैं. डिस्टेंस जो है वो कितना मैटर करता है स्पेस टाइम के अंदर. कोई चीज़ बहुत दूर है तो वो पहले घट चुकी है, लेकिन हमारे पास आज पहुंच रही, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, सिर्फ लाइट के बिना हम लाइट के बिना कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. सो द स्टार्स, देयर इज अ स्टार, देयर आर मैनी स्टार्स जो कि पहले ही खत्म हो चुके हैं, बट द लाइट इज स्टिल कमिंग हियर. सो द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस टाइम impacts the reality. Our reality is different, actual reality is different. Got it? सूर्य की रियलिटी 8 मिनट देर में पहुंचती है हमारे पास. तो दिस स्पेस टाइम डायनामिक्स, ये जो स्पेस टाइम डायनामिक्स है ना, इसके अंदर स्पेस टाइम इसलिए कोलैबोरेट हो जाते हैं क्योंकि टाइम अपने आप में एक डायमेंशन है, और अब वो वाला स्पेस टाइम नहीं है, स्पेस एंड टाइम नहीं है कि स्पेस में एक चीज़ भाग रही है, गाड़ी चल रही है और हम उसका टाइम नोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. उसका टाइम अलग है क्योंकि, और हमारा टाइम अलग है. This is how space times come into being, and in this discussion of electromagnetism and quantum etc. and महत्वपूर्ण बात यह है कि रैशनैलिटी को यहाँ पे, रैशनैलिटी की इम्पोर्टेंस यहाँ पे सामने आ जाती है. ओवर. स्पेशल रिलेटिविटी में जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें सिर्फ टाइम डायलेशन पे था, बट दैट वाज अ मिस्टेक जो मेरे ख्याल थोड़े साल के बाद वाले पेपर में आइंस्टीन ने करेक्ट करी थी. 2 चीजें कंसिडरेशन में रखनी होती है, टाइम डायलेशन एंड स्पेस कंट्रैक्शन. स्पेस तब हम कंट्रैक्शन, सही. करेक्ट, स्पेस कंट्रैक्शन, राइट. स्पेस कंट्रैक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो स्पेस पे निर्भर कर रही है. कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ बहुत दूर है, वही जो मैंने इन्फॉर्मेशन वाली बात कही कि एक आदमी है वो दूसरे प्लेनेट पे, यहाँ से 4 लाइट ईयर दूर मान लीजिए एक प्लेनेट है, उस पर एक आदमी है, उसकी एज अभी 20 ईयर्स है, राइट. लेकिन ये बात हमारे तक पहुँचने में 4 लाइट ईयर्स लग जाएंगे. तो जब तक हमें पता चलेगा कि 4 लाइट ईयर्स, जब तक हमें पता चलेगा कि उसकी एज 20 ईयर्स है, तब तक 4 लाइट ईयर्स बीत चुके होंगे. तो दिस इज हाउ डिस्टेंस इम्पैक्ट्स द एग्जिस्टेंस. उस 4 लाइट ईयर में उसके साथ क्या होगा हमें नहीं पता. गॉट इट? हेलो, ओके. अभी आगे इस पे डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स डिस्कस फर्दर ऑन दिस टॉपिक्स. यस अमन. आई थिंक इसको एक बार रीड करना चाहिए इस चैप्टर को. और इसमें आपने समझाते हुए ना एक चीज कही थी कि प्रोसेसिंग क्राइसिस, मतलब हम उसे रीडिफाइन करके सेम चीजों पे पहुंच रहे हैं या क्या कर रहे हैं? विच क्राइसिस? मतलब विच क्राइसिस?
philosophy in crisis. Okay. थोड़ा सा इलाज। Okay. The okay. फिलोसफी इन क्राइसिस का मतलब तुमने क्या पूछा? फिलोसफी इन क्राइसिस में हम रिडिफाइन करके कहाँ पहुंच रहे हैं? मतलब कि मटेरियलिज्म या आइडियलिज्म कौन वैलिडेट कर सकते हैं, हम किसको, कौन से स्टैंस पे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एस्टैब्लिश कर पाए हैं थोड़ा सा। देखो, despite that the philosophy is in crisis, materialism is not in crisis, right? And it is established by Lenin in his work Empirio-Criticism. Materialism is not in crisis. In philosophy may be in crisis. Correct. Why philosophy is in crisis? We have discussed it. How philosophy is in crisis, and we will keep on discussing it. Particular in सर की जो दूसरी बुक है उसमें particularly इसी पे वर्क है. But materialism is not in crisis. Materialism is properly established. Yes. तो फिर फिलोसफी इन क्राइसिस का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना, मटेरियलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, ये वो, उसमें से किसी को हम प्रोफाउंडली बिलीव कर लेंगे, नहीं करेंगे। फिलोसफी इन क्राइसिस का एज सच मतलब क्या हुआ? Materialism do not answer every philosophy cannot answer every phenomena, every question. जैसे एक एग्जांपल है कि वाई, अभी यही एग्जांपल ले लो, वाई लाइट स्पीड इज कांस्टेंट. सेकंड, ये एग्जांपल ले सकते हो. मतलब देर आर मैनी थिंग्स लाइक पैटर्न्स नहीं है. जो अभी तक हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, फिलोसफी का अर्थ है कि हम चीज़ों के पैटर्न्स को खोज निकालते हैं और वो पैटर्न्स बार बार रिपीट करते हैं और हम उसको फिलोसोफाइज करते हैं कि ये ऐसा होता है. यही है एक्सप्लेनेशन. और कोई फिलोसफी, कोई मिस्ट्री तो नहीं है. लेकिन एक चीज़ एक बार ऐसा हुई, मान लीजिए, लेकिन वो दोबारा वैसा ना होके अगली बारी किसी और तरीके से होती है, फिर वो किसी और तरीके से होती है और फिर वो किसी और तरीके से होती है. वो पैटर्न कभी आता ही नहीं. जो इलेक्ट्रॉन का या क्वांटम का जो मोशन है, वो उसमें पैटर्न्स वैसा नहीं है जैसा कि न्यूटोनियन वर्ल्ड में होता है. उसमें पैटर्न यूनिक पैटर्न्स हैं. सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द पैटर्न्स आउट ऑफ इट. फिलोसफी का मतलब ही पैटर्न फाइंड करना है. रिसर्च फिलोसोफाइज करने का मतलब. ओवर. हेलो. हाँ जी सर. फिलोसफी का मीनिंग है कि जो साइंस की जितनी डिस्कवरीज हैं उनका जनरलाइजेशन, और वो जनरलाइजेशन जो है वो अब नहीं हो पा रहा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में. लेकिन एक चीज़ का तो हो रहा है कि मैटर जो है उसका जो कंक्रीट शेप है वो नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट शेप अब भी है. एब्स्ट्रैक्ट शेप जो है उसका वो है. कंक्रीट शेप जो पहले हम डिस्कस कर सकते थे वो नहीं है. वो नहीं का मतलब है तो सही, लेकिन उसको उससे आगे रियलिटी आगे चली गई. ये नहीं है कि है ही नहीं, ये नहीं मतलब. लेकिन मेटीरियलिज्म जब हम कहते हैं तो क्या वो फिलोसफी नहीं हो जाती फिर? Yes, materialism is a concept, right? But materialism एक एस्पेक्ट है फिलोसफी का कि पदार्थ. फिलोसफी, हाँ, फिलोसफी की बात तो कर ही सकते हैं. मेटेरियलिज्म एक एस्पेक्ट है कि चीजें आइडिया के बिलोंग एग्जिस्ट करती हैं. वट एवर इज बियॉन्ड आइडिया इज मैटर. दिस इज अ कॉन्सेप्ट. दिस इज अ थीसिस ऑफ लेनिन, या कुछ भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग है. Whatever beyond idea is matter. But what is there in that matter, that is not known. हमारी अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी को लेके चेंज हो जाएगी. पूरा बेस हिल गया जैसे साइंस का हिल गया, बस वही है. क्राइसिस का मतलब हम थोड़ा सा डाइवर्ट वे में नहीं समझ रहे. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि
वो ड्रॉ ही नहीं किया जा सकता। प्रोबेबिलिटीज पे तो बेस्ड है क्वांटम, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं बस। तो उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज ही ना कर पाना या उससे कुछ ड्रॉ ही ना कर पाना, ऐसा तो नहीं है ना। तो मतलब पुराने तरीके से जैसे हम फिलॉसफी को समझ रहे थे उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, बस इतना ही तो है। और कुछ लोग उसे कंफ्यूज करके, या तो मतलब एक तरीके से हम, वो होता ना कि कोई नया कॉन्सेप्ट आया है उसे लेके सब उछल कूद मचाने की कोशिश करते हैं और अपनी थ्योरी में फिट करने की कोशिश करते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी वो किधर फिट हो रही है। वो फिट ही तो नहीं हो रही है। फिट करने का जो कॉन्सेप्ट है, राजीव माले सर यही तो कह रहे हैं कि एक, हाँ, क्योंकि इसको लेके एक बहुत ह्यूज कंफ्यूजन पैदा हो गया है जिसके कारण कुछ आइडियलिज्म में जा रहे हैं, कुछ एग्नोस्टिसिज्म में इसे फिट करने की कोशिश करें, बस वही है ना। yes, the approach has to be changed, that it should not be fixed, it should not be fixed in something, and it should be जैसे जो it should be in motion. The philosophy cannot be, skeleton word से सर को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? skeleton word से इसीलिए प्रॉब्लम है, it should not be fixed in something, right? It should be in motion, no boundaries. Only then we can philosophize it. Earlier Matter, हाँ, matter itself became motion. matter become motion, correct, or motion is matter, right? Particle and wave हाँ, is there, yes, but even particle and wave is yes or not. correct, At the same time, particle is there. At the same time, particle is not there. particle is not there, right, correct, That is the dialectical height of the matter, rather. right. With philosophy, when we say that we want to generalize something, it means that we are understanding its limits, we are going up to the very limits of the understanding. But when we say that we are understanding the word as motion, it means that it has no limits, even temporary limits. It don't have even temporary limits. In न्यूटन, इससे पहले की जो फिलोसफी, जब फिलोसफी क्राइसिस में नहीं है, उस टाइम पे कम से कम टेम्परेरी लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, लेकिन फिर भी उस बाउंड्रीज के बियॉन्ड हम क्वेश्चन करते हैं। वो उस फिलोसफी की विशेषता है, उसमें ठहराव है, तभी उसके चलते पॉलिटिकल इकोनॉमी वगैरह को एक्सप्लेन कर दिया गया दुनिया को। मार्क्स ने जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के माध्यम से, लेनिन ने और ने एक्सप्लेन किया, साइंसेस उसमें आती। बट नाउ द वर्ल्ड एज पर these discoveries is instantaneous, it is very vast, it is not light dependent, and it is beyond There is no stability at all in economy itself. yes 1.11 atom could, or part of the atom could destabilize the world. destabilize, right. हाँ जी, आगे बढ़े। आई थिंक आज के लिए बहुत है, और अगली वो इसका मतलब ये हुआ कि आप मटेरियलिज्म करने के बजाय इमोशनलिज्म कहो। हाँ, आप yes इमोशनलिज्म, नॉट इमोशनलिज्म। इमोशनलिज्म सर देखो, मटेरियलिज्म से हम कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बात कही थी सबसे पहले, मैटर डज नॉट मीन द थिंग दैट कैन बी टच्ड और दैट कैरी स्पेस। मैटर इज अ कॉन्सेप्ट, मैटर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, जो कि दैट कैरी स्पेस फॉर वन थिंग। सो इवन इन द ट्रेडिशनल फिलोसफी, मैटर इज नॉट मैटर, ये एक मैटर का एक एस्पेक्ट है। मैटर के दो पोल हैं, एक पोल है माइंड में, एक पोल है बाहर दुनिया में, एट द सेम टाइम है दोनों, ठीक है। वो जब हम कहते हैं ना कि भाई बाहर की चीज़ को हमने समझ लिया, तो उसका ऑपोजिट आ गया एकदम से माइंड में। मैंने जैसे ही बोला ग्लास, कप, इसका ऑपोजिट तुरंत माइंड में सेट हो गया। जैसे ही सेट बोला मैंने, वैसे ही वो रुक गया, मोशन रुक गया उसके अंदर। तो दिस इज हाउ, बहुत ब्रिलियंटली कहा था सर ने, व्हेन वी कंसीडर, कंसीडरिंग इज डेथ, दिस इज हाउ कंसीडरिंग इज डेथ। एज सून एज आई सेड दैट इट इज अ कप,
आई स्टॉप द मोशन ऑफ द कप, इस वाले पोल में आई स्टॉप द मोशन ऑफ द कप, द कप जो मैटर है वो मोशन में है। लेकिन कंसेप्चुलाइज तो हम मोशन लेस करके ही समझ सकते हैं ना अब तक के उसमें, तो कंसेप्ट भी हाँ। हम मोशन लेस करके समझते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, तो वो वहां पर हम खत्म करते हैं उसको This और is व्याख्या the करते हैं। this is the poverty of concept. This is the poverty of concept that, and this is the poverty of concept that we कहते हैं necessary evil. The concept is the necessary evil. We cannot. Yes, Aman. Just 1 minute. The concept is a necessary evil. Evil क्यों है? Because it stops motion. It is necessary because we cannot understand motion without concept. Over. Yes, Aman. इसके लिए लाइन है चैप्टर में, हाँ. रिडक्शनिज्म अल्टीमेटली लीड्स टू सब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली नॉन साइंटिफिक अप्रोच। Reductionism leads to idealism and consequently non-scientific approach. Yes, reductionism, absolutely correct. मतलब वो फिलोसफिकल और साइंटिफिक अप्रोच जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिंपलर सिस्टम्स में ब्रेक डाउन करके, जैसे हम पहले समझ रहे होते थे कि फंडामेंटल पार्ट्स में समझने की कोशिश कर रहे होते थे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करके और समझाने का काम तो कर देते थे, लेकिन क्लैरिटी और प्रिसीजन लाने के लिए और प्रिडिक्टिव फोर्स पावर का काम करते थे, लेकिन वो ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते थे और एमर्जेंट प्रॉपर्टीज जो बिहेवियर उसका आता है या चेंज होती है इंटरैक्शन पे, वो हम मिस कर जाते थे, Yes, चाहे फिलॉसफी में हो चाहे साइंस में। basically what is idealism? Idealism means that something has been idealized. Idea becomes dominant over matter. This is idealism. हाँ, मतलब इंडिविजुअल माइंड या कॉन्शियसनेस जब इसीलिए रियलिटी इसीलिए राजू मोहन कहते हैं कंसेप्ट्स को मोशन में देखना चाहिए, concepts को motion में देखना चाहिए. Correct. मतलब रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं होनी चाहिए हमारी। Yes. वो समझने में हेल्प कर सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, मतलब समझ सकते हैं उसे, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके भी समझना है। समझ ही उसकी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी समझ है। हीगल कहते हैं, एक somewhere I read that it is difficult to mold. It is easier to mold physical bodies than to concepts. मेरे इतना गजब है। तो हम जिस चीज को लेकर दिमाग में सेट कर लेते हैं, ये आदमी तो ऐसा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, राइट। सो बट और आप ये दो कि भाई ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरा जीवन लगाया आइंस्टीन के लिए, कभी नहीं माना आइंस्टीन ने कि पार्टिकल एंड वेव जो है वो, मैटर जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों हैं, प्रोबेबिलिटी पे एग्जिस्ट करता है। आइंस्टीन ने कभी नहीं मानी ये बात कि कि एक चीज जो है वो एक जगह पे ना होकर असंख्य जगह पर है। ये बात आइंस्टीन ने कभी नहीं मानी, डिस्पाइट आइंस्टीन के सब ये नहीं मानी कि अभी हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, the particle do not have a specific position, the particle exists in probabilistic fashion। यहाँ पे 30% हो सकता है, या 20% हो सकता है, या 10% हो सकता है, या 0% हो सकता है। दिस इज हाउ रियलिटी एग्जिस्ट्स, राइट। बट Einstein, what Einstein said, God do not play dices। आइंस्टीन ने कभी नहीं मानी इस बात को। Einstein had a clear picture। No, Einstein लेकिन yes, continue। relativity के थ्रू, लेकिन again he is also in the time when there is more relevance of Newtonian physics and it is difficult to digest। इसलिए मैं ये एक स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं काफी सारे साइंटिस्ट उनकी कि despite understanding it was difficult to digest। Even the light was considered as if that it is first of all वो क्लियर आया है इस चीज का, लेकिन then also he is making that statement।
ओके ओके, वो कह रहे हैं ना उसके बीच में शायद हाइजेनबर्ग और आइंस्टीन के बीच में 35 ईयर्स तक डिस्कशन चली है, बहस चली है। और नील बोहर के बीच में, सॉरी, so the Neil Bohr was saying that this अभी जो बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी वाली बात पे कि पार्टिकुलर वेव जो है वो करता है, एग्जिस्ट करता है, बट आइंस्टीन वाज समवेयर सर्टेन दैट देयर मस्ट बी एट द वेरी कोर, एंड में जाके कहीं रियलिटी सर्टन है, कहीं रियलिटी सर्टन है। वो ये इस पॉइंट से हटने को तैयार नहीं रहे हुए, कभी नहीं हटे। और उनका ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, द गॉड डू नॉट प्ले डाइसेस। गॉड जो है वो चीज़ों को सही जगह पे रख रहा है, उसकी पोजीशन सही है, वो डाइसिस से दुनिया डिसाइड नहीं कर रहा है। बट उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स, उनके सारी थियरीज इस बात को इशारा करती थी कि दैट गॉड प्लेस डाइसिस। आई गेव दिस एग्जांपल बिकॉज ऑफ दैट लाइन कि फिजिकल बॉडीज को चेंज करना आसान है, कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। about the next Monday. Yes, We should stop here and decide about the